Very good evening to you all and namaste. And here I meet you again on yet another day with yet another story and yet one more career to discuss. And hoping I'm adding some value to your knowledge, to your know-how, to your mindset, and maybe helping you to at least think and rethink. Okay. So my ritual is 3 steps. Step number 1, I tell you why I'm here, how I am here. Next step, we talk about the inner growth, the mental growth, the growth mindset, how we can have a wonderful mindset. And next and last is the career. We take up one career, anything, something new. I'm talking of things about what after 10th or what after 12th or whatever. It could be UG, PG or wherever you are in any space of life, because we are living in a wonderful age where anytime, anything can be done at any age. Nothing is a bar. The world is free and open to you with this wonderful miracle here to you. You can do anything on this earth, right? So here I am. My name is Vinita Vora. I have 30 years of experience of working in schools as a teacher, trainer, principal, vice principal. I worked in CBSE, ICSE, IB, Cambridge, all the boards. I've spent 30 years working with children. And now I thought I'll have freedom from space and place. And here I am talking to anyone. Okay, so world is my oyster today and wonderful technology that is helping me do it. Okay, so next, after this, the preliminary is done. I now start with my mission, what I'm going to do. So today I'm going to take up in my series, because I'm literally hooked by Earl Nightingale. If you visit my YouTube channel, I have put a lot of videos on Earl Nightingale, and the last 17 days, I conducted his entire series of Miracles of Mind, 17 lessons on it, and each lesson is a wonderful takeaway. Do visit my YouTube. If you want to dissect it, you can have one lesson at a time. If you want the entire meal on your table, I have put the entire full declamation also. So today I start with the strangest secret. I'm going to do 10, I am doing now, his 10 top 10 personality development ideas. Today he's talking of the power from within. And this is again enunciated from his The Strangest Secret. I put that video also. Okay. Sorry, I'll speak in Hindi. Okay, my वादा is to speak in Hindi. Yeah. तो अर्ल नाइटिंगेल ने जो अपनी स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है उसमें सक्सेस को कैसे डिफाइन किया है, वो सक्सेस किसको मानते हैं, वो कहते हैं सक्सेस एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल है। वो कहते हैं जिस आदमी ने अपना एक प्री डिटर्मिन्ड गोल सेट कर लिया और उसको पा लिया है, उनकी नजरों में अर्ल नाइटिंगेल की वो सक्सेसफुल है। और वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं ये बात को प्रूव करने के लिए कि हमने अगर कोई गोल डिसाइड किया और हम उसे पा लिया है तो अर्ल नाइटिंगेल की नजरों में वो सक्सेसफुल है। जैसे एक रैलो में एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, मैन सर्च फॉर हिमसेल्फ, इंसान की उसके लिए स्वयं के लिए खोज। इस बुक में वो ये कहते हैं कि हमारे समाज में आज की तारीख में साहस का विपरीत कायरता नहीं, अनुरूपता है, कंफॉर्मिटी, द हर्ड मेंटालिटी। जो कर रहे हैं मैं भी वही करता हूँ, उससे उसको इससे मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा। ये जो हर्ड मेंटालिटी है आज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है, क्योंकि हम देखा देखी करते हैं, लिटरली अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, बट विदाउट यूजिंग अ ब्रेन। और सो उनको ये लगता है रालोमे को कि ये बहुत बड़ा आज के लिए एक काइंड ऑफ अभिशाप बन चुका है। ओके, तो एक सर्वे करा गया था, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा वहां पर अर्ल नाइटिंगेल ने कि आप सुबह रोज क्यों उठते हैं, आप रोज काम पे क्यों जाते हैं। आप भी अपने आप से ये बात पूछ सकते हैं। आई एम नाउ टॉकिंग टू द पेरेंट्स, क्योंकि आई एम एड्रेसिंग ऑल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल। आज के स्टूडेंट्स कल पेरेंट्स बनेंगे और आज के पेरेंट्स हैं वो कल स्टूडेंट्स थे। तो आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव हैं और बच्चों के पास आज है और कल का पर्सपेक्टिव मे बी यू कैन गिव देम बेटर, राइट। सो वेदर पेरेंट्स और नॉट पेरेंट्स, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबका अपना पर्सपेक्टिव है। तो आप अगर अपने आप से पूछते हैं मैं सुबह क्यों उठता हूँ या उठती हूँ, मैं रोज काम पे क्यों जाता हूँ, तो जब उन्होंने अमेरिका में क्वेश्चन किया और सर्वे किया, बहुत लोगों से क्वेश्चन किया, तो 19 में से 20 ने जवाब दिया सब जाते हैं इसलिए मैं भी जाता हूँ, सब काम पे जाते हैं इसलिए मैं भी काम जाता हूँ। आप देख रहे हैं जवाब, तो ये कंफॉर्मिटी हो गई, पीपल एक्टिंग लाइक एवरीवन एल्स विदाउट नोइंग व्हाई।
हमें कुछ नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं। तो ये जो हमारी ब्लाइंड यात्रा है, ब्लाइंड जीना है इस दुनिया में, ये उसकी चर्चा कर रहे हैं, राइट। अब हम वो कहते हैं हम 7 साल तक कुछ रीड करना सीख लेते हैं, और जब तक कि हम 25 साल के होते हैं हम कुछ ना कुछ कमाने लग जाते हैं, अपनी लिविंग अर्न करना शुरू कर देते हैं, कई बार सब फैमिली भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। बाय द टाइम हम 65 के होते हैं, हमारे में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। ओके, तो वो इस बात की ही चर्चा कर रहे हैं, और स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बोलते हैं कि ये सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये फिर भी सीक्रेट है। हम इसे जानते हुए भी अनभिज्ञ हैं, हम जानते हुए भी अनजान हैं, इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। आप मेरी जो मैंने वीडियो डाला है उसको इंग्लिश में जरूर पढ़िए, उसको भी मैं अपनी आवाज में इंडियन एक्सेंट में जरूर डालूंगी, जिससे कि अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी आवाज में उसको सुन ले, जैसे मैंने दूसरा डाला है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम why do they conform, they are acting like the wrong percentage group। वो कह रहे हैं 95% लोग दुनिया में ऐसे जो सक्सीड नहीं करते, ओनली 5% सक्सीड करते हैं। ये जो कन्फॉर्मिस्ट हैं ये उस 90% की मात्रा में गिने जाते हैं। ये लोग कन्फर्म क्यों करते हैं? तो वो वापस कहते हैं आओ हमारी डेफिनेशन पे चलते हैं सक्सेस की। द मैन हु सक्सीड्स इज द मैन हु प्रोग्रेसिवली रियलाइजेस हिज आइडियल्स। अगर आपने अपने दिमाग में कुछ आइडियल्स बना लिए हैं और आपका पर्पस है, गोल है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको क्योंकि गोल है, पर्पस है, तो आप बढ़ रहे हैं और आप पाएंगे भी। ये अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं। तो ही इज द मैन, आई एम गोइंग टू बिकम दिस, एंड देन बिगिंस टू वर्क टुवर्ड्स हिज गोल। तो ये वो इसलिए सक्सीड होता है क्योंकि उसको पता है वो कहाँ जा रहा है। तो हम में से आधे से ज्यादा क्या 90% को तो ये पता ही नहीं हम क्यों जा रहे हैं। सब काम करते हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, सब सुबह उठते हैं, मैं भी सुबह उठ रहा हूँ, मेरी फैमिली है, मुझे इसलिए कुछ करना है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। क्या ये इनफ रीजंस हैं? इस पे वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, थोड़ा हमें भी सेल्फ सर्च करना चाहिए, हमें अंदर खोजना चाहिए, इसलिए द पावर ऑफ विद इन ये टॉपिक है इसका, राइट। तो अब उन्होंने 2 एग्जाम्पल लिए, 2 शिप्स के। वो कहते हैं चलो एक शिप खड़ा है, वो हार्बर पे खड़ा है, और उसका कंप्लीट वॉयज जो उसकी यात्रा है वो प्लान्ड है, मैप्ड आउट है, कैप्टन है, क्रू है, सबको पता है शिप कब जाएगा, कब निकलेगा और कहाँ पहुंचेगा। उसके पास एक डेफिनेट यात्रा का गोल, ठीक है, और वो पहुंचेगा क्योंकि उसके पास गोल है। अब हम दूसरा शिप लेते हैं, वो उससे भी भव्य शिप है, बड़ा शिप है, लेकिन वहां पर क्रू ऑर्डर में नहीं है, कैप्टन भी नहीं है, और उस शिप को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ नहीं जाएगा, बस शिप खड़ा है। कहाँ पर? हार्बर पे खड़ा है। तो अब जैसे इंजन स्टार्ट होते हैं, अगर हम उस शिप को छोड़ देते हैं, उसको भी चला देते हैं, उसका कोई गंतव्य डिसाइडेड नहीं, तो आप शायद मेरे साथ ये मानेंगे, मैं अर्ल नाइटिंगेल को हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू विल अग्री विद मी, कि अगर वो हार्बर से चलो निकल भी जाता है बाहर, किसी भी तरह निकल भी जाता है, तो वो कहीं किसी डिजर्टेड बीच पे चला जाएगा। वो डिरेक्ट है, डिरेक्ट है जिसके पास दिशा नहीं है ना, दिशा का भान नहीं है, वो किसी भी जगह पर चला जाएगा, बिकॉज उसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है। और यही केस हम ह्यूमन बींग्स के साथ है। अगर हम में से 90% को ये पता ही नहीं हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? क्या हम उस शिप की तरह नहीं होते जिसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है? तो ये कहते हैं, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कौन होते हैं। अगर एक स्कूल टीचर है, अगर उसने चाहा था स्कूल टीचर बनना, वो आज स्कूल टीचर है, तो वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उसने चाहा, किया, अमल किया और पूरा किया। अगर एक वाइफ है, एक मदर है, वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उसने चाहा कि उसको वाइफ बनना है, मदर बनना है, वो अपना सुचारू रूप से काम कर रही है, वो सक्सेसफुल है। ठीक है, दूसरा वो एग्जाम्पल देते हैं, आपके कोने पे जो गैस स्टेशन है, उस पे जो गैस डाल रहा है आपके, वो सक्सेसफुल है, उसने सोचा मैं करूंगा, बनूंगा, वो बन गया। तो सक्सेसफुल वो सेल्समैन है जो टॉप नॉच सेल्समैन है, क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया, ग्रो किया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, सक्सेस इज एनीवन, सक्सेसफुल मैन इज एनीवन जो डेलिबरेटली कुछ काम कर रहा है, जान के पहचान कर कोई काम कर रहा है, प्री डिटर्मिन काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उसे ये करना है और उसको वहां पर पहुंचना है। तो वो आदमी जो है सक्सेसफुल है। अब यहाँ बात शुरू होती है, वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट, यद भावम तद भवती, जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं।
ट्राई कीजिए। कोई शेर थोड़ी कहता है मैं जंगल का राजा हूँ, परंतु वो सोचता है मैं जंगल का राजा हूँ, वो जंगल का राजा है। तो ये आपकी सोच है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो लेट मी से दैट अगेन, फिर से दोहरा रही हूँ, वी बिकम व्हाट वी थिंक। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। थ्रू आउट ऑल हिस्ट्री द ग्रेट वाइज मैन एंड टीचर्स, फिलोसफर्स, प्रॉफिट्स, सब इस बात पर तय है, चाहे उनके कितने डिफरेंसेस हो, पर इस बात पर सब एकाग्र है कि वी आर व्हाट वी हैव थॉट अबाउट। जो हमने सोचा है हम वही बन जाते। ये सब मानते हैं इस पे, सब सब एक मत इस पे। मार्कस ऑरेलियस भी कहते हैं अ मैन इज व्हाट हिज थॉट्स मेक ऑफ इट। जो आपके थॉट्स होते हैं वही आपको आप बनाते हैं। तो आप समझ रहे हैं जीत कहाँ है? अंदर है। मन के हारे हार, मन के हारे जीत, बन के जीते जीत। तो जो इंसान के थॉट्स हैं वही उसको मूर्त रूप देते हैं, वो जो भी। राइट। आई ब्रॉट माई सेल्फ टू अ लॉन्ग मेडिटेशन। नाइटिंगेल कहते हैं मैंने बहुत सोचा है, बहुत सर्वे किया है, बहुत रिसर्च करी है, और मैं इस कन्विक्शन पर पहुंचा हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स जिनका एक पर्पस सेटल्ड है और वो उस पर एकजुट हो गए हैं उसको अकम्प्लिश करने के लिए, तो वो सक्सेसफुल होते हैं। तो क्या जरूरी चीजें, राल्फ वाल्डो इमर्सन भी कहते हैं अ मैन इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे। आपके दिमाग में एक दिन में 60,000 से ऊपर विचार आते हैं और जाते हैं। अब ये विचार कौन से आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, इस पर आप स्वयं अंकुश लगा सकते हैं। आप में वो पावर है, वो शक्ति है, क्योंकि ये विचार ही आपको फीलिंग्स देंगे, फीलिंग्स आपके एक्शंस में परिवर्तित होंगी, एक्शंस बिहेवियर में, बिहेवियर आपकी जिंदगी बनाएगा। तो आप समझ गए, वी आर व्हाट वी थिंक अबाउट। तो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ बहुत उम्दा बात करते हैं, बहुत बड़े लेखक रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में इनकी बुक्स हैं। बर्नर्ड शॉ कहते हैं पीपल जो है अधिकांश अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं। आप क्या हैं या क्या नहीं है, भाई मैं इसलिए नहीं हूँ कि मेरे सर्कमस्टांसेस नहीं थे, मेरी सिचुएशन नहीं थे। द पीपल हु गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड आर द पीपल हु गेट अप एंड लुक फॉर द सर्कमस्टांसेस। जो सक्सेसफुल पीपल है जो वो थे जो सर्कमस्टांसेस के ऊपर आए और इन्होंने वो किया जो इन्होंने चाहा। सर्कमस्टांसेस या हार्डशिप्स या ट्रबल्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे लिए लेसन्स हैं, हमारे लिए रोड़े नहीं है। आपका मस्तिष्क है जो उसको रोड़ा बनाता है। तो जिसने ठान ली, जिसने सोच लिया, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। ऐसा बर्नर्ड शॉ भी कहते हैं। तो अगर वो कहते हैं इफ यू कांट फाइंड द सर्कमस्टेंसेस देन मेक देम। नहीं मिल रहे तो क्या आप बना लो। वेल कितना साफ है, बिल्कुल साफ दिखता है, पेरेंट है इजंट इट, कि वी बिकम व्हाट वी थिंक। तो उन्होंने ये बोला है अगर आप अ पर्सन इज थिंकिंग अबाउट इट एंड व्हाट विल गो, तो कन्वर्सली जिस इंसान के पास गोल है, पर्पस है, उसके पास न चिंता है, न सोच है, न डिलेमास है, क्योंकि उसके पास पर्पस है, उसके पास गोल है। तो जिस आदमी के पास गोल नहीं है, पर्पस में, वही फियरफुल है, वही डिलेमा में है, वही एंशियस है, वही परेशान है। तो मैंने अपने टाइटल में लिखा है आर यू फियरफुल, आर यू एंशियस, देन दिस इज फॉर यू। तो आप सोचिए, आप भयभीत क्यों हैं, आप एंशियस क्यों हैं, आप स्ट्रेस में क्यों हैं? एक बार और सारे मेरे 17 डेज के सुनिए, आपका भय चला जाएगा। अभी सुनिए, अभी चला जाएगा। हम डरते उस चीज से हैं जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें क्लियर नहीं होता। आप क्लैरिटी लाइए, आपका कोई फियर नहीं रहेगा। बिल्कुल सूरज जैसे निकलता है, क्लैरिटी जैसे निकलती है, आपके सारे फियर्स मिटिगेट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, कोई एंजाइटीज नहीं रहती। तो आपको क्लैरिटी लानी है, दिमाग में एक पर्पस सुनिश्चित करना है, एक अपने आप को डिसिप्लिन लेना है और उस पर्पस की ओर आगे बढ़ना है। तो उठने का एक कारण बन जाता है। आपके पास एक रीजन होता है, आप सुबह उठते हैं, देयर इज अ रीजन फॉर यू टू गेट अप इन द मॉर्निंग, मोर सो फॉर स्टूडेंट्स। इनफैक्ट ये गोल्स तो टेम्पररी जर्नीज हैं। आप एक गोल खत्म करते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरा करते हैं, तीसरा आ जाता है। सो लिव इन द मोमेंट, एंजॉय इट, सेट योरसेल्फ सम गोल्स, अलाइन देम विद योर लॉन्ग टर्म गोल्स, आगे बढ़िए। ही बिकम्स नथिंग, यू सी द ह्यूमन माइंड। तो वो कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड चीज है तो वो ह्यूमन माइंड। मैंने पिछले से पिछले उसमें टॉक में ये कहा था, हम अपना बेरली 10% दिमाग का पोटेंशियल यूज करते हैं। तो ये ऐसा टूल है जो हमको फ्री मिला है। तो जो चीजें फ्री मिलती हैं हम उनकी कदर नहीं करते। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारा दिमाग जो एक फ्री मेंटल सॉइल जो है, आप ही पूछेंगे तो फिर हम लोग क्यों नहीं उसको यूज करते हैं। ये हमारे को बाय बर्थ एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यूनिवर्स ने दिया है। क्या? दिमाग, माइंड।
बहुत इनवैल्यूएबल है, परंतु ये फ्री है। जो चीजें हमें फ्री मिलती है हम उनकी वैल्यू नहीं करते। बहुत सीधा साधा सिंपल सा आंसर है, हम बहुत कम उसकी वैल्यू देते हैं। पैराडॉक्स ये है कि बिल्कुल रिवर्स ट्रू है, जिन चीजों का इतना मायना नहीं है हम उसके लिए पैसा देते हैं, उसको वैल्यू करते हैं क्योंकि हम उसके लिए पैसा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो चीजें हमें फ्री मिली हैं वो इनवैल्यूएबल हैं, लेकिन हम उनकी केयर नहीं करते। क्या फ्री है? हमारा माइंड, हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारी बॉडीज, हमारी होप्स, हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, हमारे एम्बिशंस, हमारी इंटेलिजेंस, लव फॉर आवर फैमिलीज, अपने दोस्तों के लिए, फैमिलीज के लिए प्यार, ये सब अंदर मिला है हमें, बून में हम लेके जन्मे हैं। पर क्योंकि ये फ्री है वी डोंट केयर फॉर इट, राइट? क्योंकि फ्री है। अगर यही चीजें खरीदनी पड़ जाएंगी तो शायद हम इसकी वैल्यू बना देंगे। तो ये अर्ल नाइटिंगेल कह रहे हैं कि जो थिंग्स हम पैसे से खरीदते हैं वो एक्चुअली में बहुत चीप हैं, वो रिप्लेस करी जा सकती हैं। आपका घर, मकान, कपड़ा ये खरीदिए, चली भी जाएंगी तो आप दोबारा बना सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। जिसके गोल्स क्लियर है, जिसको अपने आप में भरोसा है, जिसको अपने आप में शक्ति है, उसके लिए चीजें मायने नहीं रखती हैं। आई समझ में? एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे कितने सक्सेसफुल मैन है जो जीरो पे आ गए, वो वापस उस पर अपनी कामयाब होकर उसी जगह, क्योंकि उनके पास अंदर की शक्ति है और उन्होंने इस शक्ति को पहचाना है, इस मस्तिष्क की शक्ति को पहचाना है और उसको काम में, प्रयोग में लाया और आगे बढ़े। ठीक है। तो अगर अभी तक हम 10% एबिलिटीज को यूज कर रहे थे, इमेजिन करो इस स्थान से अगर हम ये प्रतिशत बढ़ा देंगे तो हमें कितना मिलेगा। फिर वो कहते हैं इट शैल बी गिवन, जो हम ढूंढते हैं वो हमें मिलता है। It shall be given that you shall seek. All he needs is a purpose and faith. तो आपको जिंदगी में एक ही चीज चाहिए, पर्पस चाहिए, फेथ चाहिए, बिलीव चाहिए। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। डोंट वरी। फियर सिर्फ क्रिपल करते हैं आपको, ये आकर आपको परेशान करते हैं। आपको यू हैव टू राइज अबव देम, यू हैव टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड यू कैन कॉन्शियसली डू दैट। ये मैंने बाकी वीडियोस में बार बार इसकी चर्चा करी है। आपको क्या करना है, अपना गोल हमेशा अपने सामने रखना है। बाकी जो भी चीज आ रही जा रही है आपके गोल के साथ, वो टेम्पररी क्लाउड्स हैं, बारिश आती है चली जाती है, क्लाउड्स आते हैं चले जाते हैं। आपका गोल आपके समक्ष सामने होना चाहिए। नथिंग विल स्टॉप यू। सब चीजें आएंगी और चले जाएंगी। इनफैक्ट ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। अगर हार्डशिप्स नहीं आती तो कोई हीरो नहीं बनता। इट्स द हार्डशिप्स दैट मेक यू अ हीरो, ब्रिंग आउट अ हीरो इन यू, राइट? तो आप इजी लाइफ के लिए प्रेरणा करिए, आप प्रेयर करिए कि कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो आप यू राइज अबव, अंदर की शक्ति मांगिए, राइट? तो ये इट मस्ट कम फ्रॉम सम प्लेस। जो लॉ है, हर एक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप इस लॉ को अच्छे से समझ ले भरी पूरी से, तो आप इस फिजिक्स के लॉ को अपने जीवन में उतार कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको क्या करना है, जो मैंने कल बात करी, रिवॉर्ड्स ऑफ सर्विस, आपको देना है, देना है, सर्विस की तरह देना है, तो आपको जो रिटर्न है एक बार नहीं अनेक बार मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। सो आई स्टॉप हियर एंड आई गो टू द करियर्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे एंड लेट मी सी हाउ मच टाइम। ओके, इट्स ऑलरेडी टाइम। मैं सिर्फ एक करियर या दो करियर लेके ही आज आगे बढ़ती हूँ। आज मैंने चर्चा करनी थी मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, मरीन इंजीनियर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग स्पेशलिस्ट, BIM। ये सब नई चर्चाएं हैं, शायद आपने इनका नाम इतना ना सुना हो। तो अब मेकाट्रॉनिक्स क्या है? ये मिक्सचर है इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैकेनिकल का, राइट? क्योंकि नई चीजें आ गई हैं, अमेलगमेशन हो गया है, नई फील्ड बन गई है। सो बैचलर्स डिग्री इन मेकाट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड फील्ड है, आपकी इसकी क्वालिफिकेशन है। और आप जो है मास्टर्स डिग्री भी इसमें कर सकते हैं। आप कंपनीज में इसकी ओपनिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। मेकाट्रॉन, इसके लिए आपको स्किल्स क्या क्या चाहिए होंगी? स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए आपको, C++, पाइथन चाहिए, एबिलिटी टू डिजाइन एंड डेवलप मेकाट्रॉनिक सिस्टम्स और कंपोनेंट्स चाहिए। नेक्स्ट मैं आती हूँ मरीन इंजीनियर पे। ये बैचलर्स डिग्री इन मरीन इंजीनियरिंग है, रिलेटेड फील्ड में आप बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं। इसमें प्रॉपर BA BSc कोर्सेज हैं आपके बैचलर्स के ग्रेजुएशन लेवल पे। मास्टर्स डिग्री भी है आपकी, पर ये भी आपकी ऑप्शनल है। आप जरूरी नहीं वेट करें, PG करें, वक्त बदल गया है। आप 12th के बाद इंजीनियरिंग जहाँ जब मौका लगे आप पार्ट टाइम जॉब करिए, आप इंटर्नशिप्स करिए, आप शैडो बनकर काम करिए, सो दैट यू लर्न मोर एंड मोर ऑफ इट। Attend the interviews and showcase the relevant skills and experiences
strong knowledge of marine systems, ship designs, naval architecture. So you see, familiarity with marine regulations से तो आपको एक चीज नहीं चाहिए, आपको और तरह की नॉलेज भी चाहिए. मरीन सिस्टम्स क्या है, शिप डिजाइन क्या है, नेवल आर्किटेक्चर क्या है. तो आपको एक नहीं बहुत सारी चीजों का समावेश चाहिए, और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग और ट्रबल शूटिंग स्किल्स होनी चाहिए, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है. प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी होता है जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम फेस करते हो और आगे बढ़ते हो. तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने से कोई परेशानी नहीं है. प्रॉब्लम्स से खेलेंगे, उनसे मुकाबला करेंगे, तो ये आप स्मार्टर बनेंगे. नेक्स्ट आता है BIM स्पेशलिस्ट, बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड. राइट, बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर. आपको जो है प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट आपका होता है, आप जॉब ओपनिंग्स के लिए अप्लाई करें एट आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग फर्म्स में और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में. तो BIM कंसल्टिंग कंपनीज में आपको इंटरव्यूज अटेंड करने, आपकी रेलेवेंट स्किल्स दर्शानी होगी, एक्सपीरियंस दर्शाना होगा. ठीक है, टुडे एवरीबडी इज लुकिंग एट स्किल्स स्किल्स स्किल्स. डिग्रीज मेक अ मैटर, make a difference, but not much. You have to make yourself employable, you have to make yourself skillable, right? तो आपको ये चीजें समझनी है, जाननी है, और इसका कोई इंतजार नहीं करना है. आपको स्कूल लाइफ से ही शुरू हो जाना है. पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप्स करिए, व्हाई नॉट, क्या रोकता है. अपने आप को स्ट्रीमलाइन करिए. एंड आप देखिए जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं IB वगैरह में, वहां पे वो डिमांड करते हैं कि आप कैस करें, आप कुछ ऐसा करें कि प्रूफ हो कि आपने इसको एप्लीकेट किया लाइफ में और आप आगे बढ़े. तो पढ़ाई का मायना तभी पूरा होता है. कोई वो पहले जमाने में होता था, वेट करते थे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर सोचेंगे करियर क्या है, फिर 2 साल लगाएंगे. नो 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 नो, समय बदल गया है. थिंग्स आर चेंजिंग. 2 साल में तो 6 महीने में तो टेक्नोलॉजी बदल रही है. तो आप कहाँ 5 साल का इंतजार करेंगे. तो यू हैव टू बी करियर रेडी राइट फ्रॉम योर स्कूल टाइम. इंतजार नहीं कीजिए, छोटी छोटी स्किल्स अमैस करिए, छोटे छोटे कदम लीजिए, स्कूल की एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए. इट मेक्स यू बेटर यू. यस, खाली ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय एंड जिल अ डल गर्ल. तो खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, बिलीव मी. अगर आप खाली पढ़ पढ़ के पंडित पढ़े, क्या पोथी पढ़े पंडित भयानक होए, तो आप कितने ही पढ़ाई कर लीजिए, आपको स्किल चाहिए, जीने की कला चाहिए. आपको अपने अंदर कुछ कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है, जिससे कि आप कल को जब करियर मार्केट है. एंड रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे. आप एक दिन में कोई स्किल्स नहीं कर सकते. आपको कोई थर्ड लैंग्वेज सीखनी है, आपको कुछ भी चीज स्किल को कल्टीवेट करना है, आपको उसको नर्चर करना है, आपको उसको अपने बॉडी में एम्बेड करना है. इट टेक्स अ व्हाइल. तो आपको थोड़ा सा रीट्वीक करना है अपने थिंकिंग को, थोड़ा सा रिसर्च करना है एंड आगे बढ़ना है. सो गो टॉक इट आउट, रिसर्च. Everything is at your Pinterest. If you need my help, I'm here to help you, to guide you. You can DM me, you can call me, you can reach me through anything. Today I'm going to put the links of my YouTube every day. I say I forget, so my bad. Just now I'm going to put the links. So thank you. With this I say goodbye, and I shall see you tomorrow. Yes, 6:30. It becomes at time 6:40, and I'll try my best to see you at 6:30. So farewell, a wonderful happy career to you all. More power to you all. Okay. Great learning and great listening.